بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم کی معیشت کی بہتری کے لیے سب کو ساتھ چلنے کی پیشکش. کہتے ہیں کسی پر الزام تراشی نہیں کر سکتے, اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا. کس پارٹی کی کہاں حکومت ہے اس سے غرض نہیں, ملکی مفاد سب کے لیے ہے, اکٹھے ہو جائیں. کے بعد پہلا دورہ کراچی, مزار قائد پر حاضری دی, وزیر اعلیٰ سندھ سے 1 to 1 ملاقات بھی کی. تفصیلات اس رپورٹ میں. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد پہلی بار دورہ کراچی پر پہنچے تو گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ان کا استقبال کیا. وزیر اعظم نے گورنر و وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ مزار قائد پر حاضری دی, مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی. ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعا بھی کی. بعد میں وزیر اعظم شہباز شریف وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچے, جہاں صوبائی وزراء شرجیل میمن اور ناصر شاہ نے ان کا استقبال کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں چیف منسٹر ہاؤس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور صوبائی کابینہ ارکان کا اجلاس ہوا. وزیر اعلیٰ نے وفاقی حکومت کی جانب سے سندھ کے حصے کی رقم کی مکمل ادائیگی نہ کیے جانے, وفاق سے سندھ کو کم ترقیاتی اسکیمیں ملنے کا شکوہ کیا. وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ کو تمام مسائل کی حل کی یقین دہانی کرائی. کراچی کو 150 بسیں فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا. بعض اوقات ایسے فیصلے میں کرنے پڑیں گے جو شاید ہم اپنے لیے پسند نہ کرتے ہوں, لیکن پاکستان کے عوام کے لیے, صوبوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمیں وہ فیصلے کرنے ہوں گے. تبھی یہ جو گاڑی ہے ترقی کی, جمہوریت کی, یہ آگے بڑھے گی. گورنر ہاؤس میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے ملاقات میں وزیر اعظم نے صوبے کے انتظامی امور, امن و امان کی صورتحال, وفاقی حکومت کے ترقیاتی منصوبوں اور کاروباری برادری کو درپیش مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی. صدر کراچی چیمبر افتخار احمد کی سربراہی میں KCCI کے 20 رکنی وفد کی بھی گورنر ہاؤس میں وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی. تاجر برادری سے گفتگو میں وزیر اعظم نے کہا کاروباری برادری پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے, تاجر آگے بڑھیں, حکومت کا کام انڈسٹری چلانا نہیں بلکہ پالیسی دینا ہے, ہمیں مل کر معاشی استحکام لانا ہے. آپ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں. ہمیں اس سے غرض نہیں کہ کس کی حکومت کہاں ہے, ہمیں اس سے غرض ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے ذاتی پسند ناپسند سے بالا تر ہو کر اور پاکستان کے بہترین مفاد میں ہم اکٹھے ہو جائیں. FPCCI کا نمائندہ وفد بھی وزیر اعظم سے ملا. تاجروں نے بجلی اور گیس کے نرخ کم کرنے کا مطالبہ کر دیا. وزیر اعظم نے بزنس کمیونٹی کے نمائندہ وفد کو اسلام آباد بلا لیا. سینئر نائب صدر FPCCI ثاقب مگو کا کہنا تھا اگلی ملاقات 2 مئی کو اسلام آباد میں ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف کو معاشی استحکام کے لیے بھارت اور بانی PTI سے بات چیت کا مشورہ. تاجروں سے گفتگو کے دوران کراچی کے معروف تاجر عارف حبیب نے وزیر اعظم کو کہا کہ میں چاہتا ہوں آپ 2 ہاتھ ملائیں, ایک ہاتھ بھارت سمیت پڑوسی ممالک سے ملائیں جبکہ دوسرا ہاتھ اڈیالہ کے مکینوں سے ملائیں. یہ کام آپ کر سکتے ہیں. پہ ہے سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو, شافہ مبارک, آپ نے دوبارہ وزارت عظمیٰ کی ذمہ داری جو ہے سنبھالی ہے. میں باقی تمام منسٹرز کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. الحمدللہ ہم جب اس وقت ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری پاکستان میں پازیٹیو ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں. اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ابھی آل ٹائم ہائی پہ ہے. آپ نے اور ہاتھ ہمارے پیپلز پارٹی کے ساتھ ملائے, آپ نے اور لوگوں کے ساتھ ملائے, اس کے اچھے نتائج جو ہے. IMF سے ہاتھ نہ ملتا تو ان سے کس طرح ہاتھ ملتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ 2 اور ہاتھ ملائیں آپ. 2 اور ہاتھ جو ہے میں سجیسٹ کروں گا آپ کی جو ہے وہ سبمیشن کہ ایک جو ہے ہمارے پڑوسیوں سے ہاتھ ملائیں جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. آئی تھنک اس کے بھی جو ہے وہ بہت اچھے نتائج آئیں گے, انکلوڈنگ انڈیا میں سمجھتا ہوں. اور آپ یہ کر سکتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ بھی جو ہے معاملات کو ٹھیک کرتے ہیں. دوسرا جو اڈیالہ کے باسی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ ہاتھ ملائیں, وہاں بھی معاملات کو جو ہے وہ بہتر کرنے اور وہ آپ کر سکتے ہیں. آئی تھنک یہ اگر بیسک چیز جو ہے ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جو ہے وہ بہتری آئے گی. انٹرنیشنل مانیٹری فنڈز IMF پاکستان کے لیے $1.1 بلین کی فنڈنگ کی منظوری دے گا. IMF کی ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ 29 اپریل کو ہوگی جس میں IMF بورڈ پاکستان کے لیے $1.1 بلین کی فنڈنگ کی منظوری دے گا. جون 2023 میں IMF نے پاکستان کے لیے $3 بلین قرضہ پروگرام کی منظوری دی تھی. نئے IMF پروگرام کے لیے IMF مشن کے اگلے ماہ کے وسط میں دورہ پاکستان کا امکان ہے. پاکستان IMF کے ساتھ 24ویں قرض پروگرام میں داخل ہوگا.
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीनी वफ़द की मुलाकात हुई है। बातमी दिलचस्पी समेत सरमायाकारी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान सी पैक मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए पुरअज़्म है। गवादर बंदरगाह से इलाकाई रवाबत को फ़रोग़ मिलेगा। पाक चीन ताल्लुकात ख़राब करने की दुश्मनों की कोशिश कामयाब नहीं होगी। सरमायाकारों को मुकम्मल सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। अभी मौसम के बारे में आपको अपडेट करें तो आइंदा 5 रोज़ के दौरान आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मूसलाधार बारिश के बायस बरसाती नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने के अलावा पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। मुतल्लिका इदारों को किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत। NDMA ने कहा काश्तकारों को फसल खसूसन गंदम की कटाई के हवाले से मामूलात तश्कील देने, सयाहों और मुसाफिरों को पहाड़ी इलाकों में गैर ज़रूरी सफ़र करने से इज्तनाब और सफ़र ज़रूरी हो तो मौसम और रास्तों की सूरत हाल से आगाह रहने का मशवरा। तर्जुमान नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक महकमा मौसमियात ने पेश गोई की है कि 26 ta 27 अप्रैल बलोचिस्तान, नोशकी, पशीन, हरनाई, यूब, बारखान, गवादर, केज, अवारान के मकामी और बरसाती नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। 27 और 28 अप्रैल दीर, सवात, चतराल, मानसहरा और कोहिस्तान के मकामी नदी नालों में मूसलाधार बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के है। 27 ta 29 अप्रैल तेज बारिश के बायस बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गिलियात, कश्मीर और गिलगित में लैंड स्लाइडिंग भी मुतवक्के है। कराची में आज जुज़वी तौर पर मौसम अबर आलूद और गर्म रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। शहरी क़ायद के मौसम का ताज़ा तरीन अहवाल हम जानेंगे हमारे नुमाइंदे शहूद कुरैशी से। जी शहूद। आज मौसम जुज़वी अबर आलूद और जो है हवादार है। अलबत्ता महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज दिन में इजाफे के साथ गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा देखा जाएगा, जबकि मौजूदा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड नोट किया गया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान जो है रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि इस वक्त शहर में हवाओं की रफ्तार जो है वो काफ़ी तेज़ है। इस वक्त शहर में हवा 18 से 20 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जबकि दिन भर में यही हवाओं का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, जिसमें हवा में नमी का तनासुब जो है तकरीबन 80% रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात ये बताते हैं कि आज 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। अलबत्ता आने वाले चंद दिनों में गर्मी की शिद्दत में जो है वो इजाफा होगा। एक नई लहर गर्मी की जो है वो आएगी, जिससे शहर में गर्मी की शिद्दत में काफ़ी जो है वो इजाफा देखा जा सकता है। अलबत्ता महकमा मौसमियात का कहना है कि आज मौसम जो है वो खुशगवार और हवादार रहेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका शहूद। पंजाब के बेशतर इलाकों में आज से मौसम गर्म रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम का मज़ीद अहवाल जाने थे हमारे नुमाइंदे आसिफ जहां से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, पंजाब भर के बेशतर इलाकों में जो है आज मौसम गर्म रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज जो है मौसम गर्म रहेगा, क्योंकि आज जो है धूप जो है असुब सवेरे से जो है अपने कहने जो है पंजाब भर में जो है बकेर रहे। आगे 7 रोज़ तक जो है बारिश के इम्कानात भी नहीं है, जिसकी वजह से जो है मौसम मजीद गर्म हो सकता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मौसम में गर्मी से जो है शहरी जो है बीमार पड़ सकते हैं। शहरी जो है गर्मी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। अगर हम लाहौर के मौसम के हवाले से बात करें तो लाहौर का मौसम भी जो है काफ़ी गर्म रिकॉर्ड किया जा रहा है। सुबह सवेरे से जो है मौसम काफ़ी गर्म हो चुका है। अगर हम मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो इस वक्त शहरी लाहौर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो तकरीबन 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। अगर बात की जाए हवा मिनमी के तनासुब के हवाले से तो इस वक्त शहर में जो मौजूदा हवा मिनमी का तनासुब है वो तकरीबन 50% मौजूद है और हवाएं जो है वो 2 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही है। तभी माहिरीन का कहना है कि शहरी जो है गर्मी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, क्योंकि गर्मी से अगर वो बचाने के एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करेंगे तो शहरी जो है वो बीमार पड़ सकते हैं। बच्चों का खास ख्याल रखें, क्योंकि बच्चे जो है जल्दी बीमार हो जाते हैं। अस्पतालों में जो बच्चों में बीमारियों का रेशो है वो सबसे ज़्यादा जो है पाया जाता है। तभी माहिरीन का कहना है कि आप हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें, दूसरे शहरी को भी हेलमेट पहनाने की तलकीन करें, ताकि ना सिर्फ आप बल्कि दूसरे शहरी भी जो है बीमारियों और गर्मी से महफूज रह सकें। जी हम बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।
सैनिटर इजलास आज होगा। 17 नुकात पर मुश्तमिल एजेंडा जारी। कायदे ईवान और कायदे हिस्ब इख्तिलाफ तहरीरी सवालात मुअत्तल करने की तहरीक पेश करेंगे। आइंदा 5 रोज के दौरान आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बरसाती नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा, पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी 3 रोजा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचेगी। वफाकी दारकूमत के बाद अहमदाबाद और लाहौर का टूर करेगी। वेलकम बैक नाज़रीन। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक को फौरी ओहदे से हटाने का फैसला। वजारत दाखिला ने पंजाब हुकूमत से नए चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के लिए मोहम्मद अली रंधावा की खिदमात मांग ली हैं। मोहम्मद अली रंधावा इस वक्त कमिश्नर लाहौर हैं। वफाकी हुकूमत ने मोहम्मद अली रंधावा को चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और चेयरमैन CDA लगाने का फैसला किया है। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा की एक्सटेंशन पर सेनेटर इरफान सदीकी का बड़ा दावा। एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन की ख्वाहिश जाहिर की थी। जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन के लिए पूरी कोशिश की थी। नवाज शरीफ ने एक्सटेंशन देने की मुखालिफत की थी। ये बात दुरुस्त नहीं कि नवाज शरीफ की चौथी वजीर आजम बनने का रास्ता रोकने की कोशिश की गई है। और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कौन होगा? PTI में फूट पड़ गई। बानी PTI ने शेर अफजल मरवत की बजाय सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा चेयरमैन PAC नामजद कर दिए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब को हामिद रजा की नामजदगी जारी करने की हिदायत। लतीफ़ खोसा कहते हैं कि पार्टी ने हामिद खान के तजर्बे को देखते हुए चेयरमैन PAC तजवीज़ किया है। हुकूमत शेर अफजल मरवत को रखने या लेने को तैयार नहीं थी। रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पेश होने वाली खला में हथियार रखने से मुताल्लिक़ करारदाद वीटो कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अमरीका और जापान ने खला में एटमी हथियारों की दौड़ से के खिलाफ करारदाद पेश की, जिसे रूस ने वीटो कर दिया। करारदाद के हक़ में 13 वोट आए, जबकि चीन ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। रूसी मंदूब ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल खला में हथियारों पर बहस का मुनासिब प्लेटफॉर्म नहीं। रूस और चीन ने खला में किसी भी नौइयत के हथियार रखने पर दायमी पाबंदी का मुतालिबा भी किया। ये अमरीका और जापान की घिनौनी साजिश है, जिससे काउंसिल को धोखा दिया जा रहा है। बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार खला में ले जाने पर 1967 से पाबंदी आयद है।